Please let me know whether my voice is audible to you or not. Okay, good. So I have now presented my screen and I hope it is visible to you. Is it? Okay. Okay, good. So we have started the 10th chapter, correct? And we have covered some portion of this chapter. So before moving on to our next topic, we will just revise whatever we have learned in the last few classes. Okay. So I will just revise the previous classes in 5 minutes, and then we will start the a new topic. Okay. So we all know what is electric charge, correct? So what is the value of charge on proton as well as electron? We all know that is 1.6 into 10 raised to the power minus 12 is the charge present on proton, that is positive charge, and a charge on electron is negative 1.6 into 10 raised to the power minus 12. This is the charge. Okay. So after that, there are few properties of electric charge. The first one is additive nature of charge. That means we can add charges similar to mass. Okay, but the difference between the addition of mass and addition of charges is that the summation or the addition of mass can never be negative, correct? But it is going to be always positive. But addition of charge may be positive and negative also. Okay, so it is both the cases are there. So the second thing is quantization of charge. Now quantization of charge, इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहे, सो इट इज नथिंग बट अ स्टेप साइज. कि मतलब अगर हमें कोई चार्ज डिफाइन करना है, so that charge can be defined in steps only, and the step size is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे या फिर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, उसी चार्ज को हम स्टेप साइज मान के चलते हैं. ठीक है, और दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज. सो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसे कहा जा सकता है. उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दैट मीन्स व्हेन वी रब द ग्लास रॉड विद द सिल्क, then there is some charge transfer from silk rod to sorry, from glass rod to silk. Okay, so there is a transfer of charge. There is not any generation or destruction of charge. That means the charge is neither generated or it nor it is destroyed. Okay, so it can only be transferred. So this is nothing but conservation of charge. Now what uh, now we have also learned the forces between charge. Okay, मान लीजिए कि there is a charge q1 and charge q2. So what is the force between them? So there are certain conditions to define the force between the charge. If the charges are similar charges, like both the charges are positive, then the force will be of repulsion, correct? And if the charges are opposite in sign, then the force between them will be attractive force, correct? So these are the forces between charges. Now how we calculate the force between charge? So we calculate the force between charge using coulomb's law, correct? So coulomb's law के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, that is F is equals to k multiplied by q1 multiplied by q2 divided by r square. Now what is this k, q1, q2 and r square that we have learned? Okay, so q1 is a charge, q2 is again a charge, and r square, r is nothing but the distance between them, correct? And k is the constant. So इस constant की वैल्यू क्या होती है ये भी हमने देखी है. What is the value of that constant? This is 1 by 4 pi epsilon. This is the value of that constant, correct? So we can say this is the proper formula for forces between the two charges, correct? q1 and q2 are the charges separated by the r distance. So if we have been asked to calculate the distance between them, then this formula we can use. So again, here is one more thing to notice, that is epsilon, correct? So what exactly is epsilon? सो दिस एप्सिलॉन मतलब उसके सामने कोई भी नोटेशन नहीं दिया है, ना ही एप्सिलॉन नॉट है ना ही एप्सिलॉन आर है. सो दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ओके, सो एप्सिलॉन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एप्सिलॉन कैन बी रिटन लाइक एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर. आई होप ये आप सब लोगों को याद है, और मैं जो बोल रहा हूं ये आप सब लोगों के माइंड में रिवाइज हो रहा है. बताइए, सबको याद है? यस और नो? ओके, समीर को याद है?
गुड संकल्प, वेरी गुड, ठीक है। So this is the force between charge. Epsilon is equals to epsilon 0 and multiplied by epsilon r, where epsilon 0 is the permittivity of vacuum, isn't it? Epsilon 0 is the permittivity of vacuum and epsilon r is the relative permittivity of that particular medium, ठीक है। So जब कभी भी हमें कोई मीडियम नहीं दिया जाता है, हमें अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाए और हमें कोई मीडियम नहीं दिया जाए, then we consider that medium as a vacuum or free space, and then we replace that epsilon with epsilon 0. That is, what is the value of epsilon 0? I think it is 8.854 multiplied by 10 raised to the power minus 11. It is the value of epsilon 0. Okay, so this is nothing but the scalar form of force. मतलब ये जो फोर्स हुआ है ये स्केलर फॉर्म में हुआ, इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड आउट द एंगल की या फिर डायरेक्शन, वी कैन से डायरेक्शन। ओके, उसके बाद में क्या आता है, ओके, द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स लिख सकते हैं लाइक दिस, सी F21, देखिए F इज अ वेक्टर, F21 इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 multiplied by Q1 multiplied by Q2 divided by mod of R21 square, where R is nothing but the unit vector and this cap suggest that it is a unit vector, ठीक है। सो अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है ये ज्यादा हम डीप में नहीं जानेंगे, लेकिन सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so it is having magnitude as well as the direction, or we can say the angle, okay। So F21 denotes what, F21 denotes the force exerted on Q2 by Q1, मतलब जो पहला हम ले रहे हैं that is the actual charge, and the next that is Q1 is the charge responsible for the force on the first charge. That means F21 denotes the force exerted on Q2 by Q1. Okay, so after that we have seen the principle of superposition. What is the principle of superposition? Principle of superposition is states like, suppose if there is one charge at center or anywhere, okay, here is one charge and there are several charges around him, मतलब कि एक चार्ज है और उसके बाजू में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। सो जब वो सारे चार्जेस, बाकी के चार्जेस कंबाइनली या फिर साइमल्टेनियसली जितना फोर्स उस चार्ज पे एक्सर्ट करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज, दैट कंबाइंड फोर्स विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द अदर चार्जेस। मतलब कि अगर इस पे मान लीजिए कि इन चारों चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन, ओके, 5 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है Q1 पे बिकॉज ऑफ दिस 4 चार्जेस, सो इफ वी इंडिविजुअली कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू Q2 on Q1, Q3 on Q2 and Q4 on Q1 and Q5 on Q1, then the summation of this is going to be also 5 Newton only, okay। So this is the principle of superposition. Now after that we have seen the electric field. What is electric field? Okay, see, this is the electric field. Electric field is nothing but the force acting on a unit charge, or we say it as a टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है और फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज in the formula of force there are two charges Q1 and Q2, and in the electric field's formula there is only one charge, that is Q, okay। So this is the nothing but the formula of that electric field। So electric field के बारे में हमने बाकी कौन सी चीजें जानी है, this region around a charged object in which Coulomb force is experienced by another charge is called electric field। So electric field का भी एक ऐसा एरिया रहता है कि मतलब कहीं पे एक चार्ज रखा है, so उसके सराउंडिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा कि अगर कोई दूसरा चार्ज वहां पे जाने की कोशिश करता है, so that charge will experience a Coulomb force, okay। And so this Coulomb force is experienced just because of the electric field। So electric field is not dependent on टेस्ट चार्ज, मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ही चार्ज है और दूसरा टेस्ट चार्ज है ही नहीं टू टेस्ट द वेदर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज producing or not, okay। So in such case we can say that
a lone charge, or we can say one charge is also sufficient to produce electric field. मतलब कि एक charge भी electric field produce करता ही है. It is not necessary to have two charges. Okay, now after that our next point is okay, so we have seen the formula for electric field in the scalar form. So this formula is in the vector form. So what we are doing here, just we are just dividing the force, that is F by Q, and Q is a test charge, we can say here. Okay, and this R is a unit vector. This R is a unit vector that is from the unit charge to the actual charge. Okay, so this is the formula in vector form for electric field. Now after that, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये हमने देखा कि मतलब इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चार्जेस और फील्ड इज इक्वल at all the points, then that field is said to be uniform electric field. But if the even if the direction is same and the magnitude is different, or the magnitude is same and the direction is different, then that particular uniform field will be called as non-uniform field. Okay, so this was the uniform and non-uniform field. After that, we have seen another formula for electric field, that is E is equals to VD. This is also in scalar form. Okay, this is not vector. This is commonly used definition of electric field. अगर हम electric field की commonly बात करते हैं, so this formula is mostly used. Okay, E is equals to V by D. Now what is V and D? So V is the voltage applied across these plates, and D is the distance between these two plates. Okay, so that is E is equals to V by D. I think we have solved these examples as well. Okay, after that, our next topic is electric lines of force. Now we will just start this topic. Now see, Michael Faraday 1791 to 1867 introduced the concept of lines of force for visualizing electric and magnetic fields. An electric line of force is an imaginary curve drawn in such a way that the tangent at any given point on this curve gives the direction of electric field at that point. So first of all, we have to say that electric line is a imaginary curve. It is not any real quantity. Okay, it is an imaginary quantity, we can say. It is a imaginary curve drawn in such a way, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब कभी भी किसी चार्ज के अराउंड डिफाइन करते हैं, so we have to show that with certain boundaries, isn't it? So for that, there are certain imaginary curves drawn, and those curves define nothing but the electric lines. Now what is the force, or what is the, let us say, if a test charge is placed in electric field, it would be acted upon by a force at every point on the field and will move along a path. So if this is a curve of electric field, then if we want to find out the direction of force, okay, if you want to find out the direction of force, so that we can take any point from this curve. Okay, if I take a point this from this curve and I draw a tangent to this. Okay, this is not tangent actually, let us say, okay, this is a tangent to this point. Okay, so that is not, it is nothing but the direction of electric field present at this point. Okay, so the path along which the unit positive charge moves is called as the line of forces, and these lines are imaginary. You can understand the concept of electric field lines by comparing it to the magnetic field. Okay, so there is always a limit for magnet to attract the things. बराबर कि मतलब अगर हम किसी मैग्नेट के एक सर्टेन डिस्टेंस के पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाए, तभी वो उसको अट्रैक्ट करेगा. इट विल नॉट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्वाइट डिस्टेंट. ओके, मतलब ज्यादा दूर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी रेंज के बाहर अगर रहेगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. सिमिलरली, लाइक मैग्नेटिक फील्ड, the electric field lines are also there. Okay, so a line of force is defined as a curve such that the tangent at every point on this curve gives the direction of the electric field at that point. So यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही सीखना है कि
अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सो दैट टेंजेंट will show the direction of that field at that point. Okay, so the density of electric field lines indicate the strength of electric fields at the given point in the space. So electric field की जो strength है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है वो देखो. सो सी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अगर डेंसिटी ज्यादा है, ओके, यहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा है, सो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. और अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बराबर, लाइंस थोड़े से कम है, सो यहाँ पे थोड़ी सी लो फील्ड रहेगी. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस? So the lines of force originate from positive charged object and terminate on a negatively charged object. जैसे कि हमने मैग्नेट में भी देखा है कि जो मैग्नेट की लाइंस रहती है, बराबर, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस रहती है, that starts from n pole and starts from s pole and end to the n pole, बराबर. So similarly यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो ऑब्जेक्ट रहेगा उससे ये लाइंस शुरू होगी, लाइंस ऑफ फोर्स शुरू होगी, एंड इट विल टर्मिनेट ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. द लाइन ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर एज इट विल मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, सो मतलब कि अगर दोनों में से कोई दो लाइन एक दूसरे के साथ मिल जाती है या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सो क्या होगा कि मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है एंड दिस इज अनदर लाइन. सो इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सो दैट दिस टेंजेंट विल बी लाइक दिस एंड इट विल शो इन डायरेक्शन लाइक दिस, एंड अगेन दिस विल बी द सेकंड टेंजेंट. सो मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, बराबर, एक पॉइंट दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? सो वी कैन कंक्लूड दैट द लाइंस ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर. वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ना ही किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मिलती है. द लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली. सो जो लाइंस ऑफ फोर्स है दैट आइदर लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर ओनली और नॉर्मली. द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, that is electric field inside a conductor is always zero, but they pass through insulator. So this is very interesting and important point that you should remember. The lines of force do not pass through conductor. Okay, electric field inside a conductor is always zero, but they pass through insulators. This is a property that you need to remember. Now the fifth one, magnitude of the electric field intensity is proportional to the number of lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field. Now that this property we have already seen here. Okay, so यहाँ इस surface पे कम surface में ज्यादा लाइंस है, so यहाँ पे फील्ड हाई होगा, और यहाँ पे ज्यादा surface में सेम लाइंस है, कम नहीं है एक्चुअल में, लेकिन surface बड़ा है तो फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और we can say the low field is there. Now electric lines of force are crowded in a region where electric intensity is large. Electric intensity अगर ज्यादा रहेगी तो force of lines of force भी कैसे रहेंगी, ज्यादा रहेगी. Electric lines of force are widely separated from each other in a region where electric intensity is small. अभी आप इसको रिलेट कर करके देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ में. ओके, अगर आप कंडक्टर के थ्रू पास होने वाला पॉइंट छोड़ दे तो बाकी सारे पॉइंट वी कैन रिलेट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. कि अगर मैग्नेट के हम नजदीक में देखें तो ज्यादा फोर्स रहता है मैग्नेटिक फोर्स, बराबर, लेकिन जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर चले जाएंगे, सो द magnetic force or the magnetic field will be reducing, okay, with the distance. So the electric lines of force are widely separated from each other in a region where electric field or electric intensity is small. The lines of force of an uniform electric field are parallel to each other and are equally spaced. Okay, now the line of force are purely geometric construction which help us visualize the nature of the electric field in a region. The lines of force have no physical existence. जैसे कि मैंने आपको बताया कि these are the virtual lines or imaginary lines. They don't have any physical existence. Now see, lines of force due to a positive charge.
तो अभी यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हमने सीखा है कि पॉजिटिव ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट होती है ये लाइंस या फिर जनरेट होती है, एंड दे टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी और ऑब्जेक्ट, बराबर। सो यहां से वो ओरिजिनेट हो रही है, and this at this negative charge they are terminating. So if we say there are two charges placed, that is, I'll just zoom in this so that you will be able to see the properly. This is a positive charge, this is a negative charge, बराबर। so positive charge से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओरिजिनेटिंग, मतलब कि देखिए यहां से जा रही है लाइंस, बराबर, दे आर गोइंग आउटवर्ड्स, एंड अगेन यहां से जो जा रही है दैट दोज लाइंस आर टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब कि हमने कहा था ना कि नेगेटिव चार्ज पे वो लाइंस टर्मिनेट होती है, या फिर नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट होती है। सो नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे टर्मिनेट होते हुए हमें दिख रही है। सिमिलरली देखिए यहां से भी कुछ लाइंस जो है वो आ रही है, एंड दे आर टर्मिनेटिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। सो दिस इज द pictorial representation that whatever we have read in the last paragraph. So if two similar charges are placed, then the lines of force will be going away from the charges, okay, so they will not meet each other, neither they will intersect, correct. So if the two negative charges are there, so the lines of force will be coming to the charge, and lines of force terminate on a conductor। तो देखिए यहाँ पे एक कंडक्टर दिया गया है, this box is conductor, and here are few lines coming from right side as well as from left side, and though both the lines or the lines from both the sides are terminating on this particular conductor, so electric field inside the conductor is equals to 0, okay। So now intensity of an electric field is more at a point A and less at a point B। so देखिए आप इस पॉइंट पे अगर कंसीडर करेंगे, सो यहाँ पे कम स्पेस में ज्यादा लाइंस है, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट बी, ओके। यहाँ पे सिमिलर हम स्पेस कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं, बट द नंबर ऑफ लाइंस आर less, so that's why the electric field intensity is less here, okay। So now let's move to the electric flux। so इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था वो बहुत ही इजी था, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, बराबर। सो आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, ओके। जस्ट रिस्पॉन्ड एवरीवन। ओके गुड, ठीक है। सो कई सारी चीजें आपको इस चैप्टर में हो या फिर 11th स्टैंडर्ड में हो, इस चैप्टर में हो या फिर 11th स्टैंडर्ड में हो, आपको नहीं दिखाई देगी, बराबर। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते रहेंगे ना साल भर, तो ये सारी चीजें आपके साथ फेमिलियर हो जाएगी, और इतना कुछ इन चीजों में हार्ड नहीं है। सो डोंट बॉदर अबाउट इट, दिस ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो जस्ट कीप स्टडिंग, यू विल गेट यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स। नाउ our next topic is electric flux। now what is electric flux? as discussed previously, the number of lines of force per unit area is the intensity of the electric field। मतलब कि एक सर्टेन एरिया में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस है या फिर वो लाइंस ऑफ फोर्स है, ऑन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज calculated or it is dependent, okay। so the formula for E is number of lines of force divided by area enclosing the force, okay। so let us suppose these are the lines, these dotted lines are the lines of electric or the lines of force, and this is the area, the blue colored thing is the area। so what we are calculating, see here, flux through S। so अभी हमें इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है या फिर फ्लक्स क्या होता है ये हमें देखना है, ओके।
So the number of lines of force is equals to E multiplied by area, where the area is inclined at an angle theta with the direction of electric field. The electric flux can be calculated as follows. So अभी देखिए ये जो एरिया है that is not exactly perpendicular to the lines of force, that is slightly tilted towards left side, okay, or it is inclined, and the surface area is making angle theta with the electric the lines of forces, okay, these are the lines of forces. So मैं कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलूं या फिर लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलूं या फिर मैं लाइंस बोलूं, ठीक है। सो इन तीनों का मतलब एक ही है, ये आप लोगों को समझ के चलना है। तो इसके आगे मैं सिर्फ लाइंस ही बोला करूंगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो चलो ठीक है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमने डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लिखी है ना ऊपर। सो हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड, लेट अस सी। The angle between electric field E and the area vector ds b theta, okay. So this is electric field, direction of electric field, and this is area ds, or the changing area we can say, okay. Ds is nothing but the change in area, and this E is the electric field intensity that is in the vector form. So यहाँ पे ये जो लाइंस है यही लाइंस की भी डायरेक्शन शो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन शो कर रहे हैं, बराबर। हमने डेफिनेशन में ही क्या सीखा था कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहती है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इजंट इट। ये पहले ही हमने डेफिनेशन में देखा है। सो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस में लाइंस ऑफ फोर्सेस दिया गया है, सो दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, when it comes to direction or vector form, that is denoted by E bar, okay। and so the ds bar, अभी d क्या है कि change in surface area, so the surface area can change, कि कितने surface area से वो lines pass हो रही है। then the electric flux passing through ds is given by, now see d, what is flux, what is flux exactly? Flux means the number of lines or the अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, सी कंपोनेंट ऑफ ds along E। सो यहाँ पे हम फिर से उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, and ds is the changing area and cos theta, that is the angle, this theta and cos theta is the angle। so d phi is the change in flux, that will be electric field intensity जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, एरिया चेंज हो सकता है, और ये जो एंगल है that is also constant, that is also not changing, okay। एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने इस एरिया को सिर्फ टिल्ट कर दिया है, सो एंगल विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। सो इफ यू सी these are two scalar quantities, बराबर। E multiplied by ds, these are two scalar quantities, and cos theta is multiplied there। so in such case we can take E as a vector and ds as a vector। हमने सीखा था ना कि अगर कोई a vector a dot product with vector b, then we write it as a magnitude of a multiplied by magnitude of b and cos theta। ये हमने किसी तो भी एक एग्जांपल में सीखा है, बराबर। डू यू रिमेंबर दिस, इज इट, यू रिमेंबर दिस और नॉट, बताइए जल्दी। ओके, संकल्प को याद है, गुड। सो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उनके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा होता है। सो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा ऑलरेडी दिया गया है, सो व्हाट वी कैन टेक ए बार बी बार, सो ई बार डी एस बार यहाँ पे हम ले रहे हैं। अभी आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होते रहेंगे कि सर ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बाउंसर टाइप जा रहा है, थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है, बराबर। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो प्रूफ है, ये जो प्रूफ है, ये सिर्फ आपको एक बार समझने के लिए, ठीक है। आपको इसको ना रटने की जरूरत है, ना ही आपको इसको मोस्टली एग्जाम में लिखने की जरूरत है। एग्जाम में ये प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में आपको जो पूछने आपको जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है।
you have to just write down that and that will be asked in exam. So वो फॉर्मूला आपको याद होना या फिर समझ में आना बहुत जरूरी है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अभी समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो घर पे जाके आप फिर एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएंगे, या फिर मोस्टली यहीं पे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए d5 इज इक्वल्स टू वेक्टर e मल्टीप्लाइड बाय ds and that is also in vector form. So the total flux through the entire surface will be इंटीग्रेशन ऑफ, सो देखिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज d5 है, सो d5 में से हमें d निकालना है, मतलब कि ये जो d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। सो दैट विल बी टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस। सो हम इसका भी एक इंटीग्रेशन ही ले लेंगे, सो दैट विल बी e मल्टीप्लाइड बाय s, दैट इज इन द वेक्टर फॉर्म। सो e और s दोनों भी वेक्टर्स हैं। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी calculated using vector E multiplied by vector S and volt per meter and meter square. So that is going to be volt meter. So this is going to be the unit of electric flux Vm. So electric flux के लिए आपको लिखना क्या है, you just have to write this formula, that is phi is equals to, okay, the phi is equals to integration of d5 is equals to integration of vector E multiplied by ds in the vector form is equals to vector E multiplied by vector S. So इसका यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है। नाउ वी विल सी व्हाट इज गॉस लॉ। सो गॉस लॉ को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहे या फिर जानना चाहे, सो गॉस लॉ इज नथिंग बट द टोटल चार्ज enclosed by surface. Okay, so suppose there is one surface, let us say this is a surface, okay, this is a random surface and this is enclosed surface, that is closed surface, and here are two charges or three charges. Let us suppose these three dots are nothing but the charges. Let us suppose this charge is positive charge, this is a negative charge, and this is a again positive charge. So the total flux leaving this surface, see, total flux passing through this surface will be equal to the charges enclosed by the surface. समझ में आया, total flux passing through the surface or going outward from the or coming inward to the surface will be equal to the total charges enclosed by that surface. मतलब कि ये इस पार्ट के अंदर जो कुछ भी चार्जेस रहेंगे उन चार्जेस के बराबर ही फ्लक्स जो है वो या तो बाहर जाएगा या फिर अंदर आएगा। अब ये बाहर जाएगा या फिर अंदर आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सरफेस। तो ये थोड़ा सा जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम डीप में जाना चाहे तो ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया आएगा गॉसेस लॉ का। नाउ सी, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, one of the greatest mathematician of all times, formulated a law expressing the relationship between the electric charge and the electric field, which is called Gauss's law. The Gauss law is an analogous to Coulomb's law in the sense that it too expresses the relationship between electric field and electric charge. So Gauss law provides equivalent method for finding electric intensity. It relates values of field at a closed surface and a total charge enclosed by that surface. जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए closed surface और total charges enclosed by that surface. Consider a closed surface of any shape which is encloses number of positive charge electric charges to prove Gauss's theorem. Now see, if we consider this closed surface, okay, यहाँ पे जो surface दिया गया है ना, so इसमें एक charge है that is positive Q charge is here at O, okay. So imagine a small charge plus Q or positive Q present at a point O inside the closed surface. Imagine an infinitesimal area dA of the given irregular क्लोज सरफेस। तो इस सरफेस का एरिया कितना है ये हमें पता नहीं है, दैट माइट बी अबाउट टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा एरिया है। ओके,
So the magnitude of force electric field intensity at the point P on ds due to charge plus q at point O is, तो देखो अभी इस सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं जहां पे मैंने ये रेड डॉट ड्रॉ किया है ना, सो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, we can calculate the magnitude of electric field intensity at point P. So this is point P on ds. ds is this is the again a differential surface. ठीक है, ये जो पूरा एरिया था that is da, ये बड़ा एरिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं. ओके, सो ds due to charge positive q at point O is E is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. सो अभी एप्सिलॉन 0 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री स्पेस, और वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट द vacuum. Okay, and the q is the value of this charge and the r is the distance of separation between O and P. Correct. Now let us say the direction of E is away from point O. अभी देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसी रहेगी, अवे फ्रॉम ओ रहेगी. क्यों, क्योंकि Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन रहती है वो अवे ही रहती है. सो लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय नॉर्मल ड्रॉन टू एरिया ds and the direction of E. So this theta is the angle that is normal drawn to the, see if this is a subsurface and if I draw this is the normal and the inclination of that particular surface will create an angle theta with this normal. Okay, so this is the d theta, we are considering this as a d theta. यहाँ पे ऊपर ध्यान दीजिए जहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना वहां पे. So to area ds and the direction of E, electric flux d phi passing through the surface ds is E cos theta ds. So हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, E cos theta into ds रहेगा. पहले वाले फॉर्मूला में ये जो ds था ये है इस E के साइड में था, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है. ओके, नाउ व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज सी, यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू है, E इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर cos थीटा एंड ds एज इट इज. ओके, सो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर को साइड में निकाल दिया, cos थीटा और ds को भी हमने साइड में निकाल दिया. सो d5 इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड d ओमेगा. अभी d ओमेगा क्या है देख लीजिए, d ओमेगा इज ds cos थीटा बाय r स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉलिड एंगल की जो वैल्यू रहती है या फिर डेफिनेशन की रहती है ये क्या रहती है. सो दिस इज, यू हैव टू राइट डाउन दिस, d ओमेगा इज इक्वल्स टू ds cos थीटा बाय r स्क्वायर. इसको आपको याद ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो सबटेंडेड बाय द एरिया ds एट दैट पॉइंट. सो यहां तक तो हम आ गए. हमने क्या किया कि ये तो फॉर्मूला हमें पता था बराबर, फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस will be E multiplied by that ds multiplied by cos थीटा रहेगा. सो E की वैल्यू हमें पता है. E की वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड आउट की कि हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव Q है, सो उसकी मदद से हम इजीली E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है. d ओमेगा इज इक्वल्स टू ds cos थीटा बाय r स्क्वायर, ऐसा आप लोगों को लेना है. नाउ टोटल फ्लक्स E5 crossing the given closed surface area can be obtained by integrating over its area. Now d5 is equals to, देखिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं. इंटीग्रेशन ये हमने पहले भी देखा है बराबर, ये यहाँ तक फॉर्मूला था हमने पहले भी देखा है. So यहाँ पे what we are doing, we are just putting this Q divided by 4 pi epsilon d omega with in place of this E and ds. इसकी जगह पे हमने ये रख दिया. And since this Q divided by 4 pi epsilon 0 is a constant, it will come out of integration and there will be only integration of d omega. Okay, so d omega. So d omega का जो इंटीग्रेशन रहता है that is 4 pi solid angle subtended by entire closed surface at point O. So total flux will be Q divided by 4 pi epsilon 0 and
here multiplied by 4 pi. 4 pi is the integration of d omega or omega, we can say. So the for the flux, total flux will be q divided by epsilon 0. So this is very important formula. जो हमने यहाँ तक अभी तक इतना कुछ देखा ना, तो इसमें से आपको कुछ याद भी ना रहे तो आपको सिर्फ तीन चीजें याद रहनी चाहिए. कौन सी तीन चीजें याद रहनी चाहिए आपको? पहला फॉर्मूला तो ये, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, लिख लीजिए, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा ds. ओके, ये सारे स्केलर फॉर्म में. दिस इज द फर्स्ट थिंग. आफ्टर दैट यू हैव टू remember this solid angle, that is d omega is equals to d cos theta by r square, and then you just remember this also, d omega is equals to 4 pi, and the flux passing through that particular surface will be equal to integration of that particular electric field intensities vector multiplied by ds or equal to q divided by epsilon 0. So this is very important. See, q divided by epsilon 0, this is very very important and it is very easy to remember. क्या करना है हमें? जो चार्ज दिया गया है उसको सिर्फ epsilon 0 से हमें डिवाइड करना है, so that we can find out the total flux. This is true for every electric charge enclosed by a given closed surface. Total flux due to charge q1 over the given surface is पॉजिटिव q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. सो ये लाइन भी आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर अस इन द अपकमिंग एग्जांपल्स. ओके, सो लिख लिया इस लाइन को. टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज q1 ओवर द गिवन सरफेस, क्लोज सरफेस, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव q1 एप्सिलॉन 0. ठीक है, लिख लिया. ओके, ठीक है. सो अभी गॉसेस लॉ के बारे में एक और चीज आप लोग जान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q. ठीक है, दिस इज अ चार्ज Q, दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q. ओके, एंड दिस इज अ सिमिलर पॉजिटिव चार्ज Q. मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो सिमिलर ही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मैं सरफेस ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बड़ा सरफेस एरिया ड्रॉ करता हूं. ओके, सो फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ द सर्फेसेस, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ द सर्फेसेस will be equal. Flux, total electric flux passing through both the surfaces will be equal, and the flux is not dependent on the surface area. मतलब फ्लक्स जो है वो सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सरफेस एरिया. समझ में आया आपको? एकदम सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बहुत इजीली. इसके लिए मैं समझा रहा हूं कि एरिया अगर बड़ा भी है तो भी कोई इशू नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उस एरिया के अंदर चार्जेस कितने हैं, हाउ मेनी चार्जेस आर इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया, सो दैट इज गोइंग टू बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि flux passing through a surface area is not dependent on the area of that particular surface, but it is dependent on the charges enclosed by that surface area. Okay, now total flux due to charge q2 over the given closed surface, q2 plus q2 divided by omega epsilon 0. Similarly for q1, मतलब कि यहाँ पे पहले तो एक चार्ज था बराबर, अभी इस सरफेस एरिया में मान लीजिए कि एक चार्ज था, ये q1 चार्ज था. सो यहाँ पे q2 चार्ज भी है, यहाँ पे q3 चार्ज भी है. सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इज व्हाट, सी q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. ये तीनों आप निकाल लेंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे. सो दैट विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया. इजंट इट इजी? इजी है या फिर नहीं, बताइए. यस और नो? पहली बात तो ये कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं. मतलब अगर देखिए, अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि एक ही
पहले ही लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये एक्सपेक्ट करके आप मत चलिए। जैसे जैसे हम इन चीजों को रिवाइज करते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये चीजें और ज्यादा अच्छे से बैठने लग जाएंगी, ठीक है। सो अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको आइडिया आ रहा है कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उनकी डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सो ये अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको उससे 50% भी अगर आपके दिमाग में जा रहा है, 40% भी जा रहा है, 30% भी इवन जा रहा है, देन ऑल्सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। ओके, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ बुरा फील करने वाली बात नहीं है कि सर मुझे तो आधे से ज्यादा समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट टाइम ना। आप जब इसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे देन यू विल गेट इट। ओके, सो जो कंसेप्ट है, yes, how to calculate q2 upon epsilon जीरो। सी q2 इज द कांस्टेंट ना, मतलब देखिए q2 की वैल्यू कुछ तो दी रहेगी। अभी q2 की वैल्यू है 5 फॉर एग्जाम्पल, ऐसी वैल्यू नहीं रहती है q2 की वैल्यू दी है 5, और एप्सिलॉन जीरो की भी वैल्यू कुछ तो वियर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2.5, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसको, 5 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज 2। सो q2 की वैल्यू आपको दी रहेगी, एप्सिलॉन जीरो की तो वैल्यू हमें पता ही है। सो depending on these values we can calculate the value of q2 divided by epsilon zero। okay, yeah, ठीक है। so q2 is a charge ना, see q2 is a charge and it is having some value। यहाँ पे हम q2 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर जनरली, मतलब यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं इसलिए हम क्यों ले रहे हैं। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, सो उस एग्जांपल में आप देख लीजिएगा कि हमें पर्टिकुलर वैल्यू दी रहेगी हर एक चीज की, देन वी हैव टू कैलकुलेट फ्यू थिंग्स। ओके, नाउ सी पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन 10.18 इंडिकेट्स दैट द फ्लक्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर चार्ज पॉजिटिव है इन दैट पर्टिकुलर सरफेस, सो द फ्लक्स विल बी गोइंग आउटवर्ड्स, मतलब कि उस सरफेस से वो बाहर जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है सो फ्लक्स और द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स will be outwards away from the charge, and if the charge is negative then the flux direction will be inwards। so देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स कैसे है, बाहर जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सो फ्लक्स अंदर आ रहा है। ओके, सो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। सो अगर वो जो चार्ज है वो उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर है ही नहीं, then we say that the charge or the flux is जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि हम सिर्फ उसी चार्ज की बात करते हैं या फिर उसी चार्ज को कंसिडरेशन में लेते हैं जो कि उस सरफेस के अंदर है। अगर सरफेस के बाहर है सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट पर्टिकुलर चार्ज। नो, सुपरपोजिशन थ्योरम के प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह से कुछ सेवरल चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर इन दैट पर्टिकुलर सरफेस, then their addition will be the total flux, the addition will be the total flux। now statement of Gauss law, the flux of the net electric field through a closed surface equals to the net charge enclosed by the surface divided by we can say epsilon zero। so यहाँ पे इस epsilon zero को हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, ये डिनोमिनेटर है ना इस सब का, so it is common, so we can add these charges, मतलब सारे चार्जेस को ऐड कर दो, दैट इज पॉजिटिव क्यू, एंड उस एक वैल्यू को एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर दो। अभी देखिए आपको Q2 बाय एप्सिलॉन करना, Q1 बाय एप्सिलॉन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। सो व्हाट यू विल डू, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn, इनके एडिशन करोगे एंड उसी को हम एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द सिमिलर आंसर। नाउ this is the definition and this is the formula। see, integration of electric field passing through a particular surface area is equals to q divided by epsilon zero। so this is very important, ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। ओके, दिस इज गॉसेस लॉ। अगर गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट आपको पूछा जाए, सो दिस इज द गॉसेस लॉ स्टेटमेंट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ vector E multiplied by ds is equals to q divided by epsilon zero, where q is the total charge within that surface। okay, q is the total charge within that surface। so Gauss's law is applicable to any closed surface of irregular or regular shape। so देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, a charge of 5 coulomb is kept at a center of a sphere of 1 meter radius। see,
this is a charge placed at the center of a sphere. This is not a circle, okay, and this is not a center as well. Okay, sorry, my mistake. See, this is a center, and let us say this is a sphere. This is not a circle, okay. So there is one charge that is of 5 coulomb is kept at the center of the sphere of radius 1 meter. तो इस sphere की radius जो है 1 meter है. What is the flux passing through the sphere? How will this value change if the radius of the sphere is doubled? So जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो अगर आपको याद आ रहा है या फिर आपको समझ में आ गया है, तो आप इसका आंसर एकदम क्विकली निकाल लोगे कि एक चार्ज है 5 कूलम का विच इज एट द सेंटर ऑफ अ स्पेयर विच इज हैविंग द रेडियस 1 मीटर. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट स्पेयर. क्या रहेगी फ्लक्स की वैल्यू बताइए, हु विल टेल. फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट स्पेयर. अगर आपको आता है तो आंसर लिखिए, नहीं आता है तो नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, सो कि मैं आपको क्विकली बता दूं. इफ यू कांट सॉल्व इट देन ओके, समीर ने कह दिया नो. रिपीट. ओके, सी, देयर इज वन स्पेयर, ओके, एंड देयर इज वन चार्ज प्लेस्ड एट दैट सेंटर ऑफ द स्पेयर. उस चार्ज को हमने उस स्पेयर के सेंटर में रख दिया है एंड the radius of that sphere is 1 meter. So what they are asking is what is the flux passing through the sphere. उस स्पेयर में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये पूछा गया है हमें. इफ 5 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दैट स्पेयर. क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बता देना. संकल्प, कैन यू फाइंड द आंसर. देखिए, आंसर की आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है. वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है. ओके, यू अंडरस्टूड द क्यू. सो व्हाट इज द चार्ज पासिंग थ्रू अ सरफेस. क्या क्या हो रहा रहती है उसकी वैल्यू. क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन रहती है. क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 रहती है, बराबर. सो 5 सी 5 divided by epsilon 0 will be the flux passing through this pair. समझ रहे हो. फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पेयर इज व्हाट. क्यू की वैल्यू हमने रख दी 5 और एप्सिलॉन 0 डिवाइड में है. हमें पता है ना कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ चार्ज इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. सो क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 कूलम है. अभी इस रेडियस का क्या करें. सो रेडियस 1 मीटर है या फिर 10 मीटर है या फिर 100 मीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस और द क्लोज सरफेस is not dependent on that surface or on that closed surface. ये किस पे डिपेंड करता है, दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज प्रेजेंट इन दैट क्लोज सरफेस. समझ में आया मैं क्या बोला आपको. इस क्वेश्चन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको समझ में आया. बाकी लोग बताइए. समीर, सूरज, ओके, ठीक है. तो इतना समझ लीजिए ना आप कि यहाँ पे, अभी चलिए छोड़िए, अभी आपको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखाना चाहूंगा. ओके, देखिए, अभी आपके पास एक प्लेट है. ओके, सी, यू हैव वन प्लेट. संकल्प, समझ में आया संकल्प जो मैंने आपको पिछला ये जो एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन दिया. डिड यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, गुड. सो अभी सूरज के लिए और समीर के लिए मैं थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ गॉसेस लॉ बताना चाहूंगा. ठीक है. सो मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेट है. ओके, एंड इट्स रेनिंग कॉइन्स और लेट से इट्स रेनिंग मनी. ओके, सो जो कुछ भी सिक्के आपके इस प्लेट में गिरेंगे दैट इज यूर मनी. एंड इफ द कॉइन फॉल्स आउट ऑफ योर प्लेट, मतलब कि प्लेट से अगर बाहर गिरेगा तो वो आपका मनी नहीं रहेगा या फिर सिक्का नहीं रहेगा. ठीक है. सो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 रुपीज के 3 कॉइन्स यहाँ पे गिर गए इस प्लेट में. 5 रुपए के 3 कॉइन्स यहाँ पे गिर गए. सो हाउ मेनी मनी डिड यू गॉट, 15 रुपीज. बराबर, मतलब कि उस प्लेट में जितने सिक्के गिरे वो आपके हैं. सो दैट इज 15 रुपीज. बराबर, यस और नो. समझ पा रहे हो. सी, यस और नो. आप
यस ओके, बाकी लोग, समीर, सूरज, दिस इज फॉर यू। तो इस प्लेट की जगह पे मान लीजिए कोई एक सरफेस एरिया है और उसमें 3 चार्जेस हैं, 1, 2 एंड 3 चार्जेस है, ठीक है, वो भी 5 कूलम के ही है। नहीं, चार्ज, सी, तुमने गलत फॉर्मूला लिख दिया। चार्ज इनसाइड फ्लक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो नहीं, चार्ज इनसाइड द सरफेस एरिया। देखो, ये 5 कूलम का है, ये 5 कूलम का है, ये 5 कूलम का है, ठीक है। सो कितना रहेगा ये, इसका एडिशन होगा 15, 15 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, दैट विल बी फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। अभी ये पासिंग किस पे डिपेंड करेगा, that will depend on the polarity of this charge, okay। ये अगर पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव रहेगा तो फ्लक्स आउटवर्ड फ्लो होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्जेस है देन फ्लक्स विल बी फ्लोइंग इनवर्ड्स। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि सी, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आवर चार्ज दैट इज 5, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। सो इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू यही आएगी। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, ये जो इतना कुछ किया है ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और शैल आई डू इट, ओके आई विल डू इट, वेट, लेट मी जस्ट शो यू, ओके। फॉर दैट आई हैव टू प्रेजेंट स्क्रीन, just okay, see, now the screen is visible and the calculator is visible, I think, isn't it? So 5 divided by 8.85, okay, I just need to switch to the scientific calculator, okay, see, 5 divided by, in bracket, 8.854 into 10 raised to the power, 10 raised to the power is how much, minus, okay, sorry, okay, 10 raised to the power, let us say minus 12, okay। सो यहाँ पे minus 12 मुझे करना है, okay, sweet, 8.854 multiplied by, sorry, what is it coming, 8.854 multiplied by, I'll take this in bracket, multiplied by 10 raised to the power, और ये ओके, यू कैन डू इट ऑन योर कैलकुलेटर, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सो यू कैन डू इट यूर सेल्फ। सो आपको वैल्यू पता है एप्सिलॉन जीरो की, आपको वैल्यू पता है चार्ज की, तो आप कर लीजिए, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ओके। सो ट्राई इट एट होम। नाउ दस, टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, तो हमें ये पता चल गया कि टोटल फ्लक्स जो रहेगा दैट इज independent of radius। Just give me a second and let me just see how much portion is remaining, okay, no problem, ठीक है। So we will just finish this paragraph and then we will end today's lecture। Now see, electric field intensity or electric field is inversely proportional to r square and area is directly proportional to r square। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उस फॉर्मूला में आर स्क्वायर जो है वो डिवाइड में आता है, और अगर आप एरिया का फॉर्मूला देखोगे, किसी भी चीज के एरिया का फॉर्मूला देखोगे, फॉर अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लीकेशन में आता है, बराबर। आर अगर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, करेक्ट। स्पेयर का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्पेयर। सो दैट what you can do, you can just say that r square is directly proportional to area or area is directly proportional to r square। This can be seen from Gauss's law, when the net flux crossing a closed surface is equals to q by epsilon zero, where q is the net charge inside the closed surface, as the charge inside the surface, inside the sphere is unchanged, the flux passing through the sphere of any radius is the same। Thus, if the radius of the sphere is increased by the factor 2, the net flux passing through its surface remains unchanged,
as shown in figure 10.17, same number of lines of force cross both the surfaces. The total flux is independent of shape of the closed surface because equation 10.18 does not involve any radius. So if you see, if this is a circle or let us sphere, और इसकी जो रेडियस है r1, ये रेडियस r1 हो या फिर r2 हो या फिर एक कोई r3 हो जो कि बहुत ही बड़ी हो, so the flux passing through this particular surface area will not be dependent on r or the what we can say the area that is enclosing the charge. So आज के इस लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है. गॉसेस लॉ क्या होता है? Gauss's law is the flux passing through a closed surface is equals to the summation of all the charges present in that surface divided by epsilon. Now why I am saying epsilon and epsilon zero? Epsilon zero क्यों नहीं बोल रहा हूं, epsilon क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एप्सिलॉन जब मैं बोलता हूं तो मैं उस चार्ज को किसी भी मीडियम में रख दूं तो चलेगा, लेकिन एप्सिलॉन जीरो मीन्स the charge is placed in free space or we can say in vacuum, then we can use epsilon zero. Epsilon zero is for vacuum or free space. Roger that. मतलब वो आप ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए कि फ्री स्पेस की जब भी बात होगी सो एप्सिलॉन जीरो ही हमें लेना है. सो दिस इज द what we can say conclusion of today's lecture. Okay, so yes, just try the examples based on this कि क्या होता है गॉसेस लॉ. बाकी सब भी पढ़िए, इस चैप्टर को एक दो बार पढ़ते आइए. और जो मैं आपको लिखने को बोलता हूँ डेफिनेशंस हो या फिर फॉर्मूलाज हो वो लिखते चलिए, एंड दैट इज सफिशिएंट इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इन योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मतलब अगर आप ट्वेल्थ में भी चले गए सो भी आपको ट्वेल्थ में भी ये प्रूफ जो है जो कि थोड़ा सा मैंने स्किप तो नहीं किया कुछ भी, लेकिन ये जो प्रूफ है आपको ट्वेल्थ में भी कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा. व्हाट यू विल बी आस्क्ड द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ एंड इट्स फॉर्मूला, और उसके बेस पे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है या फिर उसका कंसेप्ट क्या है ये आपको समझ के लेना है. ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस है दीज आर सिंपल कैलकुलेशंस लाइक द अलजेब्रिक कैलकुलेशंस वी डू. ठीक है, लेकिन इसके साथ में हम ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इसलिए आपको ये थोड़े से कम समझ में आ जाए कि ये वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन है, ये कॉस थीटा क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको इससे बॉदर नहीं होना है. व्हाट यू हैव टू फोकस, आपको सिर्फ उस पर ही फोकस करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं. ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है सो यू कैन पोस्ट द डाउट इन द क्लासरूम. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. 3 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं. नो प्रॉब्लम. ओके, सो बाय बाय, वी विल सी रिमेनिंग पोर्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, दैट्स इट, बाय बाय.